हाय गाइस, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हर दिन ऐसा मेल नहीं आता जहां पर एक बच्चे ने मेरे पे भरोसा किया और एक कॉलेज ज्वाइन किया जो कि मैंने रिकमेंड किया। उसने ये लंबा ईमेल भेजा है सामने जहां पर वो बता रहा है कि कॉलेज क्यों सही नहीं है। तो आई थॉट कि मैं अपना व्यू पॉइंट जरूर दूं और मैं इसका यूट्यूब वीडियोस बच्चे की आइडेंटिटी छुपाते हुए क्यों बना रहा हूं, सो दैट बाकी लोग भी जाने कि व्हाई आई सेड दिस एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। So, hello Praneet sir, I hope you are doing well. I am a first year BTech Marine Engineering cadet from IMU, Mumbai Port Campus. I am writing this email with due respect but also with genuine concern, as your content on Merchant Navy Decoded played a significant role in shaping one of the most important decisions of my life. Unfortunately, based on my current experience, I feel a deep sense of regret, and I know that many students in my batch share similar feelings but are unable to express them openly. जो छोटा सेकंड पैराग्राफ है ये हम हाइड कर रहे हैं क्योंकि बच्चे ने यहाँ पर कुछ बताया अपनी बैकग्राउंड के बारे में, जिससे ये पता चलता है ठीक कम्स फ्रॉम हार्डकोर बैकग्राउंड, बट क्योंकि उसकी यहाँ पर स्कूलिंग और वो किस बैकग्राउंड से रिवील हो रहा है तो आई कैन नॉट शेयर दैट बिकॉज उससे शायद उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाए, इन माइट लैंड अप इनटू सम प्रॉब्लम माइट। सो आगे, वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स is the infrastructure and quality of training. Most facilities are outdated. For instance, in the workshop, out of around 9 machines, only about 4 are functional, and all are old manual types. There is no exposure to modern automatic machinery used in today's industry, and even basic equipments like shaper and planner machines are missing. This creates a serious gap between our training and actual industry requirements. Although the campus is said to be around 8 acres, only about 2 acres are accessible to students. Important areas such as academic building and hostel blocks remain restricted, making the campus feel incomplete and limiting the overall environment. Restrictions are extremely strict. First year cadets are not allowed city leave, unlike other IMU campuses, effectively confining us for almost an entire year. Sports are not permitted in the first semester, and later only limited activities like volleyball and basketball are allowed. There is no proper space for football or cricket. Even basic movement is tightly controlled. Food parcels must be collected at fixed times, and students are often escorted by guards even for short distances. Swimming, which is an essential skill for mariners, is completely neglected. The pool is rarely used. No instructor is available, and female cadets have reportedly not been allowed to use it at all. This is not just a missing facility, it is a serious safety concern. The mess food quality is also poor, especially for vegetarians. Meals are repetitive, vegetables are minimal, paneer is rare, fruits are most linked to bananas. Non-vegetarian food is also unsatisfactory, with poor food quality chicken and watery gravy. Basic items like curd are not consistently provided. Additional water availability in hostel is restricted to certain hours. God, आपकी जिंदगी बहुत खराब है बेटा। मैं इसलिए इसमें वीडियो बनाना चाहता हूं। There is currently no canteen in campus, which removes an important space for relaxation and social interaction. Yes, life here feels extremely restrictive. Students are not allowed to move freely at night, and most of the time is spent confined to rooms. Interaction with seniors is minimum, which takes away an important source of guidance and learning. Daily life becomes a monotonous cycle: classes, rooms, sleep, repeat, with little opportunity for personal growth or a healthy student life. The approach of the wardens often feels overly controlling, where restrictions are imposed first and minor relaxations are later presented as privileges. इस लड़के ने बहुत प्यारी अंग्रेजी लिखी है, क्या बढ़िया मेल बनाया है। मतलब ये बच्चा बिल्कुल दुखी बच्चा है। Basic facilities such as common discussion spaces, recreational areas, and proper sports infrastructure are also lacking. At times, the environment feels more like confinement than a college campus. Regarding decision making, I made the mistake of relying heavily on the online content, including yours. The portrayal often creates an ideal image but does not fully reflect the ground reality of institutes like this. As a result, I may made a decision without sufficient real student feedback, and now it feels like a costly mistake, both financially and mentally. Given the high fees, especially for middle class families, exiting is not an easy option, which adds further pressure. While I do not have an official placement data, I have heard that many final students are still unplaced. If this is accurate, it raises serious concerns about return of such significant investment. तो चलो अब एक एक करके इस लड़के की सारी बात जानी, पूरी कुंडली समझी, अब बताते हैं। उल्टा शुरू करते हैं। तो अगर जहां तक कॉलेज के प्लेसमेंट एंड प्लेसमेंट की बात करें, आप अभी फर्स्ट ईयर में, आपको कॉलेज का ए नहीं पता, भी सी भूल जाइए, ठीक है। आपने कुछ कुछ आवाज सुनी और आपको लगा ये चीजें हैं। मुंबई पोर्ट कैंपस का 100% प्लेसमेंट है, 40 सीटें ये कुल। मैं उनके सिर्फ मुंबई पोर्ट बीटेक मरीजों की बात कर रहा हूं।
तो जिस दिन अगर अगस्त निकल जाएगा, सितंबर निकल जाएगा, आप अभी मार्च में हवाबाजी कर रहे हैं, कॉलेज से बच्चे भी पास आउट नहीं हुआ, अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। सो प्लीज थोड़ा रुकिए, हवाबाजी वहां के मत कीजिए। अगला, सर मैंने आईडी लिमेज कॉलेज की जाननी थी, क्या है बेटा, आप 11 लाख रुपए फीस दे रहे हो। अगर आपको ना कन्फाइनमेंट नहीं चाहिए, आपको चाहिए तो देन आप यू शुड हैव लेफ्ट मर्चेंट नेवी लॉन्ग बैक। सी देखिए, देहरादून में बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस हैं, बीटेक के कॉलेजेस हैं, जहां पर 5 स्टार होटल है यार, वो 25 25 26 26 लाख 16 16 लाख फीस करता है। लड़के लड़कियां लिव इन में भी रह रहे हैं, बाहर घूमने फिरने जाते हैं, अय्याशी है, मौज है। कैंपस के अंदर कैंटीन्स नहीं, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप मर्चेंट नेवी जा रहे हैं, और मर्चेंट नेवी का मतलब ही आइसोलेशन है भाई। जिस जिंदगी में आप जाने वाले हो, ये 4 साल आपको उसके लिए तैयार कर रहे हैं, वरना यहां तो अभी अय्याशी काटोगे, और कॉलेज जब शिप पे जाओगे तो लगेगा हाय मैं कहां फंस गया हूं, फिर वहां से मेल बना के अलग भेजोगे मुझे, सर दिस इज ऑल कन्फाइनमेंट, कैप्टन इज लाइक दिस। कम टाइम के लिए पानी मिलता है सर, राशनिंग करते हैं, जहाज पे जाके तुम उदंडी बन जाओगे। सी मर्चेंट नेवी की लाइफ और नॉर्मल लोगों की लाइफ में जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूं। अभी तो तुम कॉलेज गए, आओ मेरी एकेडमी में, तुम तो बोलोगे मैं तो ऐसे लोगों के बीच में फंस गया हूं जहां पर वार्डन्स अलग बैंड बजाते हैं, क्रेडिट मार्क्स अलग करते हैं, खाना बिलो एवरेज है, और सुन लो तुम तो एवरेज बोलते हो, तुम्हें तो नॉनवेज मिलता है, वहां तो नॉनवेज भी नहीं है। और अभी 1 महीना जब ईरान इराक उसका वॉर चला है, हमारे बच्चे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चावल दाल और सब्जी पे रहे हैं, रोटी भी नहीं मिली है, बट दे सर्वाइव। 1-2 पेरेंट्स की कॉल है, बट जहाज है भाई, मतलब आगे हमें सिर्फ एक टाइम फ्रूट मिलता है, वो भी बनाना। देखो ऐसे कॉलेजेस हैं मेरे टाइम में जहां पर खाना बहुत अच्छा, बट वहां की फीस 27 लाख रुपए है। इफ यू कैन अफोर्ड दैट गो देयर, या 19 लाख रुपए, आपको वही काम 11 लाख रुपए मिल रहा है भाई करने के लिए, एंड दिस इज नॉट टू मच। आई नो अ लॉट ऑफ बीटेक कॉलेजेस मैकेनिकल के और ये सब के, जहां पर फीस 16 18 18 लाख रुपए भी है। मेरे कॉलेज में जब मैं IMU कोलकाता में था, तो वहां पर फीस 4 लाख रुपए थी। अगर मैं 7% का भी इंक्रीमेंट मानूं तो आज 11 लाख रुपए फीस आइडेंटिफाई करती है, एज कंपेयर पर जब मेरी 4 लाख रुपए फीस थी। और मेरे वहां की कंडीशन की बात करें, हम 8-8 लोग एक कमरे में रहते थे, पानी अगर भर जाता था कॉलेज के अंदर, 3-3 दिन तक 4-4 दिन तक पानी भरा रहता था, और एक हफ्ता स्टार्टिंग में सिर्फ नीचे जमीन पे बिठा के रखा है, कोई क्लासेस शुरू नहीं हुई है, एंड दैट इज द टाइम दैट आई रिमेंबर मोस्टली राइट नाउ। कन्फाइनमेंट टू रूम्स, हमें सीनियर से ज्यादा बात नहीं करने दिया जाता है। स्विमिंग इज एन एसेंशियल स्किल मरीनर्स के लिए, सिखा दी जाएगी, मुझे आज तक नहीं आती है। जहाज से अगर कूद के पानी में गिर गए तो वैसे ही मरना पक्का है, लाइफ जैकेट पहन के जाओगे तो ही बचोगे, या लाइफ बोट पे जाओगे। सो प्लीज, आपके कंसर्न मेरे कॉलेज में थी, मैं 3rd ईयर फाइनल में सीखने गया, मेरे बहुत सारे बैचमेट सीख गए, मैं तब भी नहीं सीखा, बिकॉज मैं बहुत सारी मौज मस्ती में था, जो कि गलत था। बट अगर आपको लगता है कि जहाज से आप पानी में कूद गए तो आपको स्विमिंग बचा लेगी, भूल जाओ भाई, 3-3 मीटर का स्विमिंग है। तो कुछ चीजें मैथ्स क्वालिटी, यार कल को देखो, मैं यहाँ पर जस्टिफाई नहीं कर रहा, ये कॉलेज की अपनी वो है, लेकिन अगर आप एक सरकारी कॉलेज में गए तो आप एक सर्टेन लेवल ही उम्मीद कर सकते हो। और रहेगी बात IIM मुंबई पोर्ट कैंपस या मेरी कोलकाता, ये आज भी पुराने जमाने पे चल रहे हैं एज कंपेयर टू जो नए कैंपसेस IIMU के डेवलप हुए हैं। सिमिलरली TS सड़क के एज वेल, ये पुरानी लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं काफी हद तक। हमारे कॉलेज से लीडर्स बन के निकलते थे, हमें चाहे पढ़ाई नहीं आती थी, लेकिन भाई हमें कॉलेज में रहना, मैनेज करना, पीपल को बड़ी से बुरी कंडीशन में रहना, या कैसे चीजों को हैंडल करना हमें सिखाया गया। और सिखाया इसलिए ट्रेनिंग करी गई, हमने सीखा बिकॉज वी आर मेड दैट वे कि चलो तुम संभालो। डिसीजन मेकिंग वाज बेसिकली मेनली ऑन द स्टूडेंट्स, एंड दैट इज हाउ लीडरशिप डेवलप्ड। अब काफी कुछ बदल गया है सर, एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट। अबे तुम्हें स्ट्रिक्टनेस का मतलब पता है? एक टाइम तक क्या खतरनाक रैगिंग होती थी, मतलब इतने थप्पड़ पड़ते थे मुंह लाल हो जाता था, मतलब खून निकलता था मुंह से। हमने वो टाइम देखा, और आप बात कर रहे हो कि अभी एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, और आप कह रहे हो कि वार्डन्स टाइट है। कितनी अच्छी बात है कि आपने बोला वार्डन्स टाइट है, हमें जाना होता है उस टाइम पे गार्ड हमारे साथ। आई अप्रिशिएट दिस थिंग, आपकी सेफ्टी का ख्याल रखा जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि आप भाग ना जाओ, कुछ शैतानी ना कर दो, कल को आपको कुछ हो गया तो क्या होगा। सी आई डू द सेम थिंग एट माई JMDI अकेडमी। सो अगर आपको लगता है कि IIMU पोर्ट कैंपस ये चीज कर रहा है, तो भाई ये सेम चीज JMDI अकेडमी भी होती है, और जितने बच्चे आएंगे उनके साथ होंगे। आई ओपनली से दैट हमारे यहाँ पर अगर बच्चा 150 से ऊपर क्रेडिट मार्क्स खड़ा 3 महीने में, तो सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक गेट पे खड़ा कर देता 3 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद बच्चा लाइन पे आ जाता है। सो प्लीज आगे सर। हाँ, अब आपने बोला कि सर वहां पर लेथ मशीन बहुत ज्यादा काम नहीं करती, ठीक है, कुछ रिसोर्सेज एक सरकारी कॉलेज के अंदर चैलेंजिंग हो सकते हैं, लेटेस्ट ऑटोमेशन, लेटेस्ट मशीनरी नहीं है,
देन स्पेंड एंड जॉइन अ कॉलेज विद 29 लाख रुपीस, और शायद वहां पर भी पूरी तरह से लेटेस्ट चीजें नहीं मिलेंगी, बिकॉज मशीनरीज आर एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली. यू हैव गॉन देयर टू लर्न द एटीट्यूड ऑफ सीखना, कि यार ये है, इसी रिसोर्सेज में सीखो. स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप वाइनिंग लाइक अ किड. ठीक है, ये रिसोर्सेज है, इसी में सीखना शुरू करो और फिर आगे बढ़ो. प्रणीत मेहता की तरह मत बनो कि गरीब पिताजी हैं, वो बेचारे किताब नहीं अफोर्ड कर पाए तो नई किताब नहीं चाहिए, और जब नई किताब आई तो कुछ करा नहीं उसका. सो सम किड्स आर लाइक दैट. यहां पर तो उनका काम कंप्लेन करे से मेरा भी था. हमारे पास कॉलेज में अच्छी वर्कशॉप नहीं है, हमारे पास अच्छी मशीनरी नहीं है, लेकिन मैं कभी कॉलेज की वर्कशॉप में ढंग से गया भी नहीं, मुझे ये भी नहीं पता चला क्या क्या चीज, और शिप पे जाकर बहुत सफर किया. सो जो मिला है उन रिसोर्सेज का फायदा उठाइए, कंप्लेन बेबी बनना बंद कीजिए. जो जो रिसोर्सेज मिले उसमें बेस्ट करने की कोशिश कीजिए, बजाय कि ये देखने की क्या नहीं है, क्योंकि शिप की लाइफ पर वहीं पर मेन चैलेंजेस आएंगे. और हाँ, टू ऑल द स्टूडेंट्स फर्दर, अगर प्लेसमेंट इज नॉट द कंसर्न एंड यू आर लुकिंग एट much better facilities, then Tolani Maritime Institute, charging 27 lakh rupees, has great infrastructure, great facilities. बट एक मिडिल क्लास का बच्चा क्या वो 11 लाख और 27 लाख का डिफरेंस कैरी कर सकता है, बिकॉज ही वांट्स गुड फूड एंड गुड ट्रेनिंग. मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि प्लेसमेंट पक्का है कि नहीं है. प्लेसमेंट है, कहानी खत्म है, सर्वाइव करो, जिंदा रहो, जय माता दी. बाकी आई अप्रिशिएट अगर IIME पोर्ट कैंपस के ऊपर इतनी स्ट्रिक्टनेस है, आई रियली अप्रिशिएट दैट. जय हिंद, जय भारत, जय माता दी. और इसका वीडियो क्यों बनाया, ताकि कल को कोई बच्चा ये ना बोले कि यार ये चीज प्रणीत सर बोलते कुछ है करते कुछ है. आई हैव नो कंप्लेंट्स, रादर आई बिलीव स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए. न्यूसी गोवा पे तो बच्चों को फोन रखना भी अलाउड नहीं है, आदत छुड़वा देते हैं यार. अभी आजकल मैं खुद फोन से एडिक्टेड हो रखा हूं. सो थिंग्स आर चेंजिंग, यू चेंज एज वेल. मर्चेंट नेवी इज अ वेरी डिफरेंट प्रोफेशन एंड दिस कॉलेज इज प्रिपेयरिंग यू. जय हिंद, जय भारत, जय माता दी. एंड आई एम नॉट आउट हियर कि मुझे IMU कॉलेज कोलकाता या कोई पोर्ट कैंपस कुछ पैसे दे रहा है भाई. मुझे इतना पता है कि स्टॉप वाइनिंग, जो भी रिसोर्सेज मिले उसमें बेस्ट करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज थिंग्स अगर बदलनी होंगी, कॉलेज अपने आप बदलेगा जो बदल सकता है. बट दिस इज व्हाट यू हैव गॉट, बट मेक श्योर यू गेट आउट विद द प्लेसमेंट एंड गुड शिपिंग कंपनी. दैट्स इट. जय हिंद, जय भारत, जय